کیا آپ جانتے ہیں کہ خیبر کا دروازہ اکھاڑنے والے شیر خدا خلیفہ چہارم حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کیسے ہوئی؟ جب آپ بستر مرگ پر تھے تو آپ نے اپنے بیٹوں امام حسن اور امام حسین کو کیا آخری اور تاریخی وصیت کی؟ اور سب سے حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ جس شخص یعنی عبد الرحمن بن ملجم نے آپ پر یہ وار کیا، اس کی سزا کے بارے میں آپ نے کیا عدل و انصاف پر مبنی حکم دیا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم تاریخ اسلام کے اسی دردناک واقعے کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ پیارے ناظرین، شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مبارک پیدائش 13 رجب عام الفیل کے 30ویں سال ہوئی۔ اس وقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 30 سال تھی۔ آپ کا نام علی رکھا گیا، جبکہ ابو الحسن اور ابو تراب آپ کی کنیتیں تھیں۔ آپ کی والدہ آپ کو حیدر یعنی شیر کہہ کر پکارتی تھیں۔ مرتضیٰ اور اسد اللہ کے القاب آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیے گئے، جبکہ امت مسلمہ آپ کو امیر المومنین کے نام سے یاد کرتی ہے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شفیق چچا ابو طالب کے فرزند تھے۔ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ ماں اور باپ دونوں کی طرف سے اعلیٰ قریشی اور ہاشمی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا زاد بھائی تھے۔ آپ کی پرورش، دیکھ بھال اور تربیت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد ابو طالب کے بچے زیادہ تھے اور وہ مالی طور پر کمزور تھے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا کہ جعفر طیار کی پرورش آپ کریں اور علی کی دیکھ بھال کی ذمہ داری میں خود لیتا ہوں۔ اس وقت شیر خدا حضرت علی کی عمر مبارک صرف 3 سال تھی۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کی وجہ سے آپ کی زندگی بچپن ہی سے جہالت اور برائیوں کی گندگی سے پاک رہی۔ جب آپ بڑے ہوئے تو سفر ہو یا گھر میں قیام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہنے لگے۔ گھر کے تمام کاموں میں ہاتھ بٹاتے اور اپنی عمر کے لحاظ سے ذمہ داریاں پوری کرنے میں بھی مدد کرتے۔ اسی وجہ سے آپ کی عادتوں اور اخلاق پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا گہرا اثر تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عمر ابھی صرف 10 سال کی تھی کہ ان کے شفیق مربی کو دربار خداوندی سے نبوت ملی۔ چونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہتے تھے، اس لیے انہوں نے اسلام کے مذہبی منظر سب سے پہلے دیکھے۔ چنانچہ ایک روز انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو عبادت میں مشغول دیکھا۔ اس مؤثر منظر نے ان پر گہرا اثر ڈالا، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ دونوں کیا کر رہے ہیں؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے منصب گرامی کی خبر دی اور کفر و شرک کی مذمت کر کے توحید کی دعوت دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کان ایسی باتوں سے آشنا نہ تھے۔ متحیر ہو کر عرض کیا کہ میں اپنے والد ابو طالب سے اس کے متعلق دریافت کروں۔ چونکہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی اعلان عام منظور نہ تھا، اس لیے فرمایا کہ اگر تمہیں اطمینان ہے تو خود غور کرو، لیکن کسی سے اس کا تذکرہ نہ کرنا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش سے آپ کی فطرت سنور چکی تھی اور توفیق الہی شامل حال تھی، اس لیے زیادہ غور و فکر کی ضرورت پیش نہ آئی، اور اگلے ہی دن بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ابو طالب سے پوشیدہ آیا کرتے تھے اور اپنے اسلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق ظاہر نہیں کیا۔ پہلا شخص جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ جب نماز کا وقت آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی کسی گھاٹی میں جا کر عبادت کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی اپنے والد، چچا صاحبان اور پریوار کے لوگوں سے چھپ کر جاتے اور تمام نمازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا کرتے۔ شام کو گھر واپس آ جاتے۔ یہ سلسلہ جب تک اللہ کو منظور تھا جاری رہا۔ ایک دن جب یہ دونوں نماز پڑھ رہے تھے تو ابو طالب نے دیکھ لیا۔ ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے عزیز، یہ کون سا دین ہے جس کی تم پیروی کر رہے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اے چچا جان، یہ اللہ، اس کے فرشتوں
उसके पैगंबरों और हमारे जद्दे अमजद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दीन है। अल्लाह ने मुझे अपने बंदों की तरफ रसूल बनाकर भेजा है, और चचा जान, आप सबसे ज़्यादा इस बात के हकदार हैं कि आपको मुखलिसाना दावत दी जाए। अबू तालिब ने जवाब दिया, ए अजीज़, मैं अपने आबाओ अजदाद का मजहब और उनके तरीक़े नहीं छोड़ सकता, लेकिन बाखुदा जब तक मैं जिंदा हूं तुमको कोई तकलीफ नहीं पहुंचने दूंगा। सीरत निगारों का बयान है कि अबू तालिब ने अपने साहिबजादे अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाहु अन्हु से कहा, ए बेटे, ये कौन सा मजहब है जिस पर तुम चल रहे हो? उन्होंने कहा, वालिद साहब, मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर ईमान ला चुका हूँ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अल्लाह की इबादत करता हूँ और उनकी पैरवी करता हूँ। इसके जवाब में अबू तालिब ने कहा, वो तुम्हें अच्छी बात की तरफ बुलाते हैं, इसलिए इस पर कायम रहो। मक्का की ज़िंदगी के बेहद मुश्किल और तकलीफ़देह वक्त में भी आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ रहे। आप खुद फरमाते हैं, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे ऐसे चलता था जैसे ऊँटनी का बच्चा अपनी माँ के पीछे चलता है। दीन फैलाने के सफ़रों में भी आम तौर पर आप ही सफ़र के साथी होते थे। शिबे अबी तालिब की घाटी के 3 साल के सख्त और जानलेवा वक्त में भी जब मक्का के जालिमों ने बाइकॉट किया, तब भी आप रज़ी अल्लाहु अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। हिजरत के मौके पर आखिरी रात आप ही नबी के बिस्तर पर सोए, हालांकि ये मौत के मुंह में जाने के बराबर था, लेकिन आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के सामने अपनी जान की परवाह नहीं की। अगले दिन लोगों की अमानतें वापस करके आप मदीना की तरफ रवाना हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी कुबा के मकाम पर ही रुके हुए थे कि हज़रत अली इस हालत में आकर मिले कि आपके दोनों पांव छालों से भर गए थे। मदीना में मुआखात यानी भाईचारे के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को अपना भाई करार दिया और फरमाया, तुम दुनिया और आखिरत में मेरे भाई हो। जब आपकी उम्र मुबारक 23 या 24 साल हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सबसे छोटी और लाडली बेटी खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाहु अन्हा का निकाह आपसे कर दिया। इस तरह आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद बनकर इज़्ज़त और मर्तबे में पहले से भी ज़्यादा बुलंद हो गए। मदीना की ज़िंदगी में होने वाली तमाम जंगों यानी ग़ज़वात में शेर खुदा हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े मददगार साबित हुए। बदर, उहुद और खंदक की जंगों में आपने बहादुरी, हौसले और दिलेरी की एक शानदार तारीख़ कायम की। सुलह हुदैबिया का मुआहदा भी आपने ही तहरीर किया था, और खैबर की जंग में तो मरहब जैसे मगरूर और ताकतवर पहलवान से मुकाबला करना सिर्फ हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ही के बस की बात थी। आपने उसके हमले के जवाब में ऐसा वार किया कि जबड़ों तक उसका सर फटता चला गया। खैबर के आखिरी किले का दरवाज़ा आपने अपने ईमान की ताकत वाले हाथों से उखाड़ कर फेंक दिया था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया, मैं इल्म का शहर हूँ और अली रज़ी अल्लाहु अन्हु उसका दरवाज़ा हैं। सैयदना ज़र बिन हुबैश रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं कि सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसने दाना चीरा, फिर उससे घास उगाई और जान बनाई। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे अहद फरमाया था कि मुझसे सिवाय मोमिन के कोई मोहब्बत नहीं रखेगा और मुझसे मुनाफिक के अलावा कोई दुश्मनी नहीं रखेगा। प्यारे नाजरीन, सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु अन्हु की शहादत अज़ीमा ने उम्मत मुस्लिमा को एक ऐसे संगीन फितने में मुब्तला कर दिया जिसके असरात दशकों तक महसूस किए गए। मदीना मुनव्वरा में खलीफा राशिद को शहीद करने वाले वही बागी अनासिर थे जिन्होंने बाद में इस्लामी रियासत की जड़ों को खोखला करने की कोशिश की। मुअर्रिखीन इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु की शहादत ख़वारिज के हाथों हुई। ये वही गिरोह था जो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु के कातिलों में शामिल था। बाद में इस गिरोह में इख्तिलाफ़ात पैदा हो गए और ख़वारिज ने अपनी जमात अलग बना ली। बागी गिरोह के बाकी अरकान बदस्तूर हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु के गिरदो पेश में मौजूद रहे, लेकिन अब उनकी ताकत कमज़ोर पड़ चुकी थी। इसी दौरान 3 खारिजी यानी अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम, बरक बिन अब्दुल्ला
और अम्र बिन बकर अत्तैमी इकट्ठे हुए और उन्होंने मंसूबा बनाया कि हज़रत अली, हज़रत मुआविया और हज़रत अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हुम को एक ही रात में कत्ल कर दिया जाए। उन्होंने अपनी तरफ से अपनी जानों को अल्लाह के हाथ फरोख्त करने का दावा किया और खुदकुश हमले करने का इरादा किया। उन्होंने अपनी तलवारों को जहर में बुझा लिया। अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम कूफा आया और दूसरे खवारिज से मिला जो खामोशी से मुसलमानों के दरमियान रह रहे थे। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक हसीन औरत कतामा से हुई जिसके बाप और भाई जंगे नहरवान में मारे गए थे। इब्ने मुलजिम उसके हुस्न पर फिदा हो गया और उससे निकाह का पैगाम भेजा। कतामा ने निकाह की शर्त ये रखी कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हो को कत्ल किया जाए। एक खारजी शबीब में इब्ने मुलजिम को रोका भी और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हो की इस्लाम के लिए खिदमात का हवाला दिया, लेकिन इब्ने मुलजिम ने उसे भी अपने मंसूबे पर राज़ी कर लिया। ये 19 रमज़ान 40 हिजरी की सुबह थी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हो मस्जिद में तशरीफ़ लाए और इब्ने मुलजिम को देखा जो मस्जिद में आकर सो रहा था, तो आपने उसे जगा दिया। जब आपने नमाज की इमामत शुरू की और सजदे में सर झुकाया, दिल अल्लाह के हुजूर राज़ो नियाज में मशगूल था, तो इसी हालत में बदबख्त इब्ने मुलजिम ने तलवार से बेहद कारी वार किया। आपके सरे मुबारक पर शदीद ज़ख्म आया और लोगों ने फ़ौरन इब्ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाकी 2 साथी जो हज़रत मुआविया और हज़रत अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हुमा को शहीद करने के लिए रवाना हुए थे, नाकाम रहे। बर्क बिन अब्दुल्लाह जो हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को कत्ल करने गया था, उन्हें ज़ख्मी करने में कामयाब तो हो गया, लेकिन फ़ौरन पकड़ लिया गया। जबकि उस दिन हज़रत अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु बीमार थे। इसी वजह से उन्होंने फ़ज्र की नमाज पढ़ाने के लिए खारिजा बिन हुज़ाफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु को मुकर्रर किया था। खारिजी अम्र बिन बकर ने अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु के धोखे में खारिजा बिन हुज़ाफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद कर दिया। इसके बाद वो भी गिरफ्तार हुआ और मार दिया गया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को वफ़ात से पहले कुछ वक्त मिल गया, जिसे आपने अपने बेटों को नसीहत करने में बिताया। आपने हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा को बुलाया और फरमाया, मैं तुम दोनों को अल्लाह से डरने की वसीयत करता हूँ। दुनिया के पीछे हरगिज़ मत लगना, चाहे दुनिया तुमसे रूगर्दानी ही क्यों न करे। जो चीज़ तुम्हें न मिले उस पर रोना नहीं, हमेशा हक बात कहना, यतीमों से शफ़क़त करना, परेशान हाल की मदद करना, आखिरत की तैयारी में मशगूल रहना, हमेशा जालिम के दुश्मन और मज़लूम के हामी रहना और किताबुल्लाह के अहकाम पर अमल करते रहना। अल्लाह के दीन के मामले में किसी मलामत करने वाले की मलामत से न डरना। फिर तीसरे बेटे मोहम्मद बिन हनफिया से फरमाया, मैंने तुम्हारे भाइयों को जो नसीहत की तुमने भी सुन ली, मैं तुम्हें भी वही नसीहत करता हूँ जो उन्हें की है। इसके अलावा ये वसीयत करता हूँ कि अपने भाइयों हसन और हुसैन की इज्जत और तौक़ीर करना और उनके हक़ को मलहूज़ रखना, उनकी बात मानना और उनके हुक्म के बग़ैर कोई काम न करना। फिर हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा से फरमाया, मैं तुम दोनों को भी मोहम्मद के साथ अच्छे सलूक की वसीयत करता हूँ, क्योंकि वो तुम्हारा भाई और तुम्हारे बाप का बेटा है। तुम जानते हो कि तुम्हारा बाप उससे मोहब्बत करता है। फिर ख़ास तौर पर हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया, मेरे बेटे, तुम्हारे लिए मेरी वसीयत ये है कि अल्लाह से डरते रहना, नमाज वक्त पर अदा करना, ज़कात उसके हकदारों को देना, वुज़ू अच्छी तरह करना, क्योंकि बिना वुज़ू के नमाज नहीं होती, हर वक्त गुनाहों की मग़फ़िरत तलब करना, गुस्सा पी जाना, सिलाए रहमी करना, जाहिलों के साथ बुर्दबारी से पेश आना, दीन में समझ पैदा करना, हर काम में साबित कदम रहना, कुरान पर अमल करते रहना, पड़ोसियों के साथ अच्छा सुलूक करना, नेकी जी तलकीन और बुराई से मना करते रहना। फिर अपने कातिल के बारे में फरमाया, ए बनु अब्दुल मुत्तलिब, कहीं तुम मेरी वजह से मुसलमानों का खून न बहा देना और ये ना कहना कि अमीरुल मुअमिनीन कत्ल कर दिए गए हैं, इसलिए हम इंतकाम ले रहे हैं। मेरे कातिल के सिवा किसी को कत्ल न करना। फिर फरमाया, ए हसन, अगर मैं उसके वार से वफात पा जाऊं तो कातिल को भी सिर्फ एक ही वार में कत्ल करना, क्योंकि एक वार के बदले एक वार ही होना चाहिए।
उसकी लाश को मस्ख ना करना, क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है कि लाश को बिगाड़ने से बचो, चाहे वो कुत्ते की ही क्यों ना हो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो की शहादत के बाद हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हो ने इब्ने मुलजिम को बुलाया। उसने कहा, क्या आप मुझे एक अच्छा काम करने की इजाज़त देंगे? मैंने अल्लाह से अहद किया था और उसे पूरा करना चाहता हूँ। मैंने हतीम के पास अहद किया था कि मैं अली और मुआविया दोनों को कत्ल करूंगा या खुद इस कोशिश में मारा जाऊंगा। अगर आप चाहें तो मुझे छोड़ दें ताकि मैं मुआविया को कत्ल कर दूं। अगर मैं जिंदा बच गया तो वापस आकर आपके हाथ में अपना हाथ दे दूंगा। हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हो ने फरमाया, मैं तुम्हें हरगिज नहीं छोड़ूंगा कि तुम एक और फितना खड़ा करो। इसके बाद उसे कत्ल कर दिया गया। फिर लोग उसकी लाश के पास जमा हो गए और गुस्से में उसके जिस्म के टुकड़े करके आग में डाल दिए। अफसोस कि इस मामले में लोग इस कदर जज्बाती हो गए कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो की वसीयत पर मुकम्मल अमल न हो सका। प्यारे नाजरीन, ये थी शेर खुदा हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो की ज़िंदगी और शहादत का दर्दनाक वाक़या। एक ऐसी हस्ती जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इस्लाम, अदल और हक के लिए वक्फ कर दी। सोचने की बात यह है कि जिस शख्स ने उन पर कातिलाना हमला किया, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो ने उसके बारे में भी इंसाफ और रहम का हुक्म दिया। यही वो अजीम किरदार है जो इस्लाम हमें सिखाता है। अगर आप भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो से मोहब्बत करते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनकी अजीम सीरत और इंसाफ के इस सबक को जान सकें। और अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह इस्लामी तारीख़ के और भी हैरान करने वाले वाक़यात आप तक पहुँचाते रहें तो हमारे चैनल सुहेब वॉइस को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह ताला हमें हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो के नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।